Hi, good evening to all of you. So basically today we are going to do this program called add to two numbers. So here basically what we are gonna do is we have to add the two numbers with the help of linked list. Basically the two numbers has been given in the form of linked list. So we will go to the problem question and then we will try to solve it. Okay. So you are given two non-empty linked list representing two non-negative integers. They have said they have given initially they have given a linked list which did not contain anything. Okay, after that there will be some digits stored in the uh, linked list. So 243, this is L1. This linked list, if you can see my cursor, this linked list, this is the linked list basically till this position. But inside the linked list there are certain nodes. These circles are the nodes here, right? So it contains the number 243. Okay, in reverse order. Basically, we have to take the digit as 342, but not as 243. Keep it in mind. Okay, and each of their nodes contains a single digit. So what I said that this total is the linked list, and within the linked list there are certain nodes. Okay, what are the nodes? These circles. Okay, so this contains some digits inside the node. Add the two number and return the sum as a linked list. So basically one linked list is this one and another linked list is this one. 342 465. So basically these are two numbers, and what we're gonna do is we are going to make the summation of the two. We need to add them and we need to provide the result. Okay, so this what they have input: 243 L2 564, the second linked list. What is the uh, summation of it is 708. Okay, so how they are going to make it: 2 plus 5 is 7, 4 plus 6 is 10. So now what we have to do, we all know summation. So if there is a two digit, we have to carry forward the right digit and we have to write the left one, right one. I'm so sorry. 4 plus 6 is 10, right? So right digit we have to place it here and the left one we have to carry it. So the carry is 1. Again we will come to the second one. 3 plus 4 is 7. 7 plus 1 is 8. So 708 is going to be the expected output of us. Correct? So basically what is happening is the digit will be 807. Since these are also in reverse order, when we are doing the summation in reverse order, so the actual number will be 807. Got it? Okay. So now we are going to perform. So before that, I just want to tell you what is basically a linked list is. Who doesn't know? It's just for them. Okay. So linked list, we can tell like this. Linked list is basically linked list. Let me tell you is at as LL. Okay. The linked list hota kya hai? That's what we want to know first. Suppose you have 3 crores in your bank account, for example. And 3 crores is a huge amount. Correct? So might be income taxes after you. So what you're gonna do is you need to keep it somewhere, right? You need to hide it. So for that reason, here, suppose what you're gonna do is you have a home. Okay, you will keep. I'll do it with a different color. It will get easy for you to understand. Okay.
we're going to take 3 boxes. Okay, the third one. Okay, we're going to make a partition. So I'll basically try to write the whole so it will get easy for you to understand. So linked list, it's basically a link. Okay. So basically it is going to have some value, right? So what I said, so you basically have how much amount with you? Suppose 3 CR, correct? So what you're gonna do is you need to hide that amount of money, correct, from the police. So what you're gonna do is you are gonna keep 1 CR somewhere. Okay. Let this home be Goa. Okay, let me, this is gonna be at your Goa home. Correct. So here what you're gonna do, this is at your Goa home. Once here you have kept it. Next, where you're gonna keep the 1 crore, right? You have to make the distribution of 1 CR again. But what will be the next destination? You're going to write it here. Okay, so the next destination suppose is going to be at your UK home, United Kingdom, correct? Let me write it as UK. Okay, so this is basically your United Kingdom home. And in the United Kingdom home, when you have kept your ones here, then here you are telling your next destination where you have kept the other 1 crore. Okay, let it be something Los Angeles, LA, correct? Here you have kept LA, in LA, correct? So in the United Kingdom home, you are telling that I have kept the other 1 crore, yeah, rest of the money in my Los Angeles home, correct? So here it is basically your LA home. Basically, in every home, you are giving the address of the next place, or you're informing the other person, I have kept my money in the other one. Okay, and here what you're gonna write is none. ठीक है? None, because there is no other money. This is the whole and soul. Okay, again I'm explaining what is linked list basically. And here one thing I haven't, the color is not good. um, let's give this one. Okay, so now I'm going to again explain what linked list is. Okay, the concept, the same thing we are gonna use there as well in the program we are going to implement. That's why I'm taking time and I'm trying to explain it. Basically आपके पास 3 crore है, you have 3 crore rupees. Okay, but some authority is after you, any government authority is after you. Okay, so you need to hide this. तो basically आप क्या करोगे, you will go to your Goa home.
Okay, you will keep there 1 crore rupees because you can't keep 3 crores at a time at a single place. करेक्ट, एक जगह पे आप नहीं रख सकते 3 करोड़, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, तो वो 1 करोड़ आपने रखा, ये आपका जो है, मैं ये कर देती हूँ, ये जो है आपका, दिस इज योर वैल्यू, वैल, और इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस, मैंने ऐड बोल दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर, पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है? तो ये 1 करोड़ आपने रखा, ये वैल्यू क्या है इसका, 1 करोड़ रुपीस आपने इसमें रखा। अब जो बंदा जाएगा आपका गोवा वाला होम पे, उसको उधर से पता लगेगा कि आपके यूनाइटेड किंगडम वाला जो घर है उसमें आपने फिर से 1 करोड़ रखा है, ठीक है? तो ये एरो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोट को। अच्छा, ये जो टोटल जो सेट है, मतलब वैल्यू प्लस नेक्स्ट एड्रेस, करेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, नोट, दिस होल टोटल इज कॉल्ड एज अ नोट। आई होप आई एम क्लियर। तो वो यूनाइटेड किंगडम वाले होम पे घर पे वो जाएगा, जाके वो देखेगा उधर 1 करोड़ रखा है, उधर जाने के बाद ही उसको पता लगेगा कि नेक्स्ट 1 करोड़ कहाँ पे रखा है, वो है लॉस एंजलिस में। फिर से वो भागता हुआ जाएगा, भाई 1 करोड़ इधर रखा है, ठीक है? फिर वो ढूंढेगा कि कहाँ है, मेरी मम्मी ने या पापा ने कहाँ पे रखा है वो पैसे, फिर देखेंगे नन, मतलब कहीं और पे नहीं है, ये 3 करोड़ ही पापा ने रख के गए थे हमारे लिए, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। अब इसमें फायदा क्या होता है लिंक लिस्ट में, एरे भी सेम ही होता है, एरे का भी कंसेप्ट सेम है। अगर हम देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ एरे इज ऑल्सो सेम, इसमें 1 2 3 4, इसमें आप कुछ वैल्यू डाल दो उसमें, एरे में, एक, इट्स नॉट विजिबल, 1 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है, एरे में आप अब हमें सपोज चाहिए कि हमें इस इधर हमें 3 को लगाना है, 3 को इंसर्ट करना है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट इंसर्ट इन एन एरे। बट ये वाले पे अगर हमें सपोज चाहिए कि मुझे 50 लाख मुझे रखना है, फॉर एग्जाम्पल, हम एक नोट को इधर इंसर्ट करके उसका जो एड्रेस जो होगा, ठीक है, ये यूके की जगह पे सपोज हमने हिमाचल में रखना है, हिमाचल वाले घर पे हमारे पास सडनली 50 लाख आ गया, तो हमें, मैं सोच रही हूँ कि यूके वाले उसमें पता ना रख के पहले हम हिमाचल वाला रखेंगे, फिर उसके बाद हम यूके का रखेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, फिर हिमाचल का एड्रेस दे देंगे और वी कैन इंसर्ट अ न्यू नोड हियर, ओके? तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, कि आपका जहाँ पे आप रख रहे हो उसका नेक्स्ट एड्रेस आप इस पे डिफाइन कर रहे हो कि वो वाले एड्रेस पे आपका क्या वैल्यू है, ठीक है? आई होप आई कुड मेक इट क्लियर, ओके? एंड द सेकंड थिंग वाज द this explanation, okay? So now we are gonna implement the model, ठीक है? So let's see how we are gonna write the code, ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे इधर, ओके? क्लास सोल्यूशन, क्लास का नाम क्या दिया है इन्होंने, सोल्यूशन बोल के दिया है, ठीक है? अब पब्लिक में हम लोग चाहेंगे पब्लिक लिस्ट नोड, दिस इज द बेसिकली
हम लोग जब कोई लिंक लिस्ट को डिफाइन करते, ये हमारा कोड होता है, पब्लिक लिस्ट नोड। ठीक है, एड टू नंबर्स, ये क्या नाम दिया है इन्होंने, एड टू नंबर्स, लिस्ट नोड L1, लिस्ट नोड L2। ये जो नोड है 243, इसका हमने क्या नाम दिया, L1, और 564 का क्या नाम दिया है हम लोगों ने, L2। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, हम लोग क्या करेंगे अभी, कि हम लोगों को एक थर्ड भी तो बनाना है जिसमें हमारा वो रिजल्ट आने वाला है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट नोट का नाम क्या रखेंगे, चलो रिजल्ट रख देते हैं। लिस्ट नोट रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोट, और उसका वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। क्लास का एक नाम क्या दिया हम लोगों ने, सोल्यूशन नाम दिया। मैं इसको एंटर करके ये करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, समझ में आता है फिर स्कोप कौन सा बंद हो रहा है कौन सा लिमिटेड है। तो पब्लिक लिस्ट नोट एट टू नंबर्स, लिस्ट नोट क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट करना है, दैट इज द कीवर्ड लिस्ट नोट। उसके बाद वो लिस्ट नोट का क्या है, उसका हम नाम दे रहे हैं कि हमें ये दो नंबर को ऐड करना है। उसके अंदर हम देंगे लिस्ट नोट L1, वी आर डिफाइनिंग L1 और L2। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लिस्ट नोट रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोट, बिकॉज वी आर मेकिंग अनदर न्यू लिस्ट नोट। हम लोग इसको रिजल्ट ना देके हम लोग इसको L3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, हम उसके बाद एक पॉइंटर को लिखेंगे, ptr is equals to result, and list node is basically going to be in caps n। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट नोट पॉइंटर इक्वल्स टू रिजल्ट। क्यों हमने पॉइंटर को लिखा, अगर हम लोग पॉइंटर को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो बेसिकली फिर ये पॉइंट नहीं दिखाएंगे, ये क्या करेगा, इसका काम होगा पॉइंटर का काम क्या है, इधर से शिफ्ट करके उसको इधर जाना है। दिस इज द वर्क ऑफ अ पॉइंटर, करेक्ट। ओके, so now what we are going to do is we are going to define carry, int carry। और int carry क्या रहेगा, it is going to be a global variable। क्यों, क्योंकि वो लूप के बाहर में वो जब आएगा, ठीक है, पूरा हो गया हम लोगों का, चलो 4 + 6 हमें मिला 10। ओके, सम तो उधर के उधर हम लोग प्रिंट कर देंगे, सम का जो वो 0 रहेगा, पर कैरी क्या होगा, कैरी इज गोइंग टू द नेक्स्ट पोर्शन एज वेल, इसलिए उसको हमें ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और हम लोग उसको अगर ग्लोबल ना करके लोकल वेरिएबल के इस हिसाब से करेंगे ना, तो हमें वो एरर देगा कि भाई ये कैरी तो है ही नहीं ये वेरिएबल। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज, कि हम लोग इंट कैरी इक्वल्स टू 0 को एज अ ग्लोबल वेरिएबल कर रहे हैं। ओके, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड और अच्छे से व्हेन आई विल डू द प्रोग्राम। ओके, सो now we are doing while L1 is not equals to null, oh sorry, equals to null, or L2 अगर not equals to null हो रहा है, जब तक ये दोनों खाली ना हो तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम int sum इक्वल्स टू सम को हम
डिफाइन कर रहे हैं। और सम में हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस कैरी। ठीक है, सम हमने क्या डिफाइन कर दिया, टू बी ज़ीरो, मतलब सम के अंदर कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस कैरी। इनिशियल लेवल पे जब ड्राई रन हम लोग करेंगे, कैरी भी ज़ीरो है, सम भी ज़ीरो है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, वो लूप पे आएंगे अंदर, वो देखेंगे सम में कुछ है, कुछ भी नहीं है, कैरी में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा फिर से। इफ हम लोग क्या डालेंगे, इफ L1 अगर नॉट इक्वल्स टू अगर नल है, वो क्या करेगा, नीचे आएगा। हम लोग और एक स्कोप करेंगे अभी, सम करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस L1 डॉट वैल। ठीक है, L1 का हम लोग वैल्यू लेंगे, इसके बाद L1 इज इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट करेंगे हम लोग। वी आर गोना मेक इट L1 डॉट नेक्स्ट। मतलब ये जो पॉइंटर है, ये 2 से हटके ये 4 पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? मैं फिर से और एक बार आई विल मेक इट अंडरस्टैंड आल्सो। ओके, ये हम बंद कर देंगे ये वाला स्कोप को। फिर से हम क्या करेंगे, इफ L2 का देखेंगे, L2 अगर नॉट इक्वल्स टू अगर नल है, sum is equals to sum plus L2 dot val, sum is equals to sum plus L2 dot val, लिंक लिस्ट 2 का जो वैल्यू है वो ले लेगा। उसके बाद लेने के बाद वो क्या करेगा, L2 इज इक्वल्स टू L2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, कर देंगे हम लोग, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू इसने क्या किया, इसने ले लिया। अभी वी आर गोना, अब ये दोनों स्कोप हो गया, सम के अंदर L1 का वैल भी आ गया, L2 का वैल भी आ गया। ठीक है, और वो नेक्स्ट भी कर गए, नेक्स्ट पॉइंटर पे, मतलब नेक्स्ट नोट पे। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज कैरी, कैरी इज इक्वल्स टू सम या। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इधर एक हम लोगों को एक लिंक लिस्ट दिया है 243564, बट बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब वो नंबर जो है 342 है, 465 है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इस दोनों नंबर को आप लोग प्लस करो, सिंपल, यू जस्ट नीड टू प्लस इट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 5 = 7, 4 + 6 = 10। करेक्ट, अगर आप ये देखेंगे, so if I just make it a little bit big, 4 + 6 is equals to 10। करेक्ट, इधर एक कंसेप्ट
और एक है विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो है डिविजन और मॉड्यूलस का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 है, ठीक है, 10 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, 1। दिस इज गोइंग टू बी आवर क्वोशंट। बट ये सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर इसको मॉड्यूलस से करते हैं, ठीक है, मॉड करेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, दिस इज 10, 10 to be divided by 10, correct? It's looking like a 16, yes, 1, this is 10, correct? So इसमें कुछ मिला आपको, 0। सो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका ही जो वो कंसेप्ट है, कैरी मतलब क्या होता है, कैरी मतलब ये क्वेश्चन को ही हम लोग कैरी बोलते हैं, और ये आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो इधर, list node result is equals to new list node. First let us start from here, class solution। कोई भी अगर जावा प्रोग्राम आप लिखते हो, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू डिक्लेयर अ क्लास, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, एज अ सोल्यूशन बोल के दिया है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक लिस्ट नोड, पब्लिक के बाद लिस्ट नोड क्यों लिखा है, बिकॉज वी आर मेकिंग वन लिंक लिस्ट। करेक्ट, लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमें लिस्ट नोड बोल के डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका नाम क्या है, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये लिंक लिस्ट का काम क्या है, दो नंबर को ये ऐड कर रहा है। ब्रैकेट में लिस्ट नोड L1, अगेन यू हैव टू राइट दिस, देन L1 लिस्ट नोड L2, दोनों हमने डिक्लेयर कर दिया, दोनों लिंक लिस्ट को। ठीक है, अगेन लिस्ट नोड रिजल्ट, ये थर्ड वाला का भी तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, कहाँ पे वो सेव होगा जाके सारे जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो लिस्ट नोड रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड ऑफ 0। अभी उसका जो जो भी दिया है वैल्यू, बाय डिफॉल्ट उसको 0 रखा है हम लोगों ने। नाउ लिस्ट नोड पॉइंटर ptr इक्वल्स टू रिजल्ट, तो ये पॉइंटर बेसिकली क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो लिस्ट नोड ptr इक्वल्स टू रिजल्ट, रिजल्ट का जो पॉइंटर है, अगर हम लोग इधर लिखते लिस्ट नोड ptr इक्वल्स टू L1, मतलब L1 का पॉइंटर। ठीक है, now we will declare int carry is equals to 0. Mind this, this is basically a global variable, this is not a local variable। क्यों, वो भी हम लोग बताएंगे बाद में। क्योंकि ये कैरी जो है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे 2+5 is 7, इधर कोई कैरी नहीं आ रहा है। 4+6 जब हो रहा है ये 0। अभी मैंने वो डिवीजन और मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट मैंने सिखाया। ठीक है, हम लोगों ने 0 क्यों रखा है इधर, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी समेशन करते 4+6 = 10, हम लोग 1 को कैरी रखते हैं, 0 को ये कर देते। सपोज हमने 12 लिया, 7+5, सपोज इधर कुछ 7 है, इधर कुछ 5 है, 12 आया ना, तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, 2 को ही हम लोग रखते हैं और 1 को हम लोग कैरी करते। तो सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो, डिवीजन और मल्टी डिवीजन और इसका क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस का। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी इट अगेन हियर एज वेल। ये 10 है, 6+4 is 10, 10 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आता है जिसको हम कैरी बोलते हैं, और इधर जो 0 आता है, मतलब कुछ है ही नहीं तो 0 ही देगा ना, तो ये रिमाइंडर है। तो ये बेसिकली हम लोग इसको सम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, 4+6 is 10, 0 को हमने रख दिया इधर, और 1 is कैरी फॉरवर्डेड।
कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ जा रहा है, फिर से ये वाले पे जा रहा है ये। अगर हम लोग इसको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके रखते तो इधर सिंपली ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई तुम तो ये स्कोप के अंदर ही तुम कर रहे हो, कैरी तो हमें मिला ही नहीं, सो कैरी प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल बोल के हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग जो भी आप करो लाइफ में। ठीक है, कैरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैरी कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑफ द स्कोप। ये कैरी जहाँ पे लिखा है उसके बाद वाले स्कोप सारे उसको एक्सेस कर, हम लोग ये कैरी को अगर हटा के ये वाले कैरी को हम लोग कट करके ये कैरी को अगर इधर रख देंगे तो डेफिनेटली ये वाला स्कोप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। इधर नहीं, सपोज मान लीजिए इंट कैरी किया ना हमने, तो मैंने इधर बिठा दिया उसको, वो इतना ही स्कोप में ही वो एक्सेस हो पाएगा, उसको कोई कर ही नहीं सकता एक्सेस उसका जो भी वैल्यू है, इसलिए है। अब हम क्या लिखेंगे, वाइल L1 नॉट इक्वल्स टू नल और L2 नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब जब तक ये 2 4 3 जब तक खाली नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। इधर ये खाली नहीं होगा तब तक चलेगा, इधर ये खाली नहीं होगा तब तक चलेगा। एक में भी वैल्यू है तब तक ये रन करता रहेगा ये कंसेप्ट है। सो इंट सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें समेशन करना है राइट। तो ये भी ग्लोबल मतलब इसके अंदर ही एक मतलब ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए विद इन दिस स्कोप, नॉट उसके बाहर, क्योंकि उसके बाहर उसका कोई फंक्शन है ही नहीं सम का। ठीक है, इन सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस कैरी। ये सम क्या है, फर्स्ट 0 है, सम का वैल्यू क्या है 0 प्लस कैरी, कैरी भी अभी 0 ही है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इफ L1 इज नॉट इक्वल्स टू नल, L1 का वैल्यू क्या नल है, नहीं है नल, उसके अंदर कोई वैल्यू है, हम देख रहे हैं 2 में जाके, फर्स्ट नोड में है वैल्यू है, दिस इज लिंक लिस्ट 1, उसका फर्स्ट नोड में 2 है। हम लोग क्या करेंगे, सम पहले क्या था 0 है, सम हमने इनिशियलाइज किया 0 पे, करेक्ट। सो हम देखेंगे सम इक्वल्स टू 0 प्लस L1 डॉट वैल, L1 का क्या वैल्यू है 2 है, ठीक है, इसके अंदर आ गया सम के अंदर ये। L1 इज इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट, ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंटर ये 4 को फिर पॉइंट कर देगा। ठीक है, ये एरो मूव करके ये नोड से ये वाले नोड पे आ जाएगा लिंक लिस्ट 2 का, है लिंक लिस्ट 1 का, आई एम सॉरी। ये बस कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट है L2 इट नॉट इक्वल्स टू नल, L2 क्या नल है, ऑब्वियसली L2 नल नहीं है, इसमें 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस L2 डॉट वैल। नाउ कीप दिस इन माइंड, ये सम जो है सम में ऑलरेडी 2 है, सम खाली नहीं है। क्यों, ये सम जो है ये देखिए इसके अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल बोल के डिक्लेयर हो चुका है, मतलब दिस कैन बी एक्सेस्ड बाय दिस स्कोप एज वेल एज दिस स्कोप। ठीक है, तो 2 प्लस 5 क्या हो गया, उसका वैल्यू 7 हो गया सम का भी। L2 इक्वल्स टू L2 डॉट नेक्स्ट, मतलब L2 क्या करेगा, उसका वैल्यू को नेक्स्ट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट नोड पे वो लेके आ जाएगा उसका कर्सर। नाउ इट इज गोना स्टार्ट, कैरी इक्वल्स टू सम बाई 10, जो मैंने वो पहले जो एक्सप्लेन किया था। कैरी क्या है, फर्स्ट इंस्टेंट में कैरी कुछ नहीं रहेगा क्योंकि सम 7 है, सम डिवाइडेड बाई अगर 10 हम लोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैन आई मेक अ न्यू, ओके आई नीड टू, हम लोग ये बेसिकली ट्राई रन करेंगे, ट्राई रन करके देखना सबसे इजी होता है। ठीक है, 2 प्लस 5 क्या है, 2 प्लस 5 क्या हो गया आपका 7। ठीक है, तो 10 को 7 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये 0 आएगा इधर और ये 7 का 7 ही रह जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, देर इज नो कैरी, कैरी है ही नहीं, बट ये रहेगा मतलब रिमाइंडर,
तो ये रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, कैरी क्या है, अभी तक कैरी इज 0 हियर। सम डिवाइडेड, ये मॉड्यूलस ऑफ 10 का मतलब क्या है, रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर तो आएगा ही, बिकॉज ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली 7 ही रहेगा। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोना डू इज ptr डॉट नेक्स्ट, मतलब पॉइंटर को हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर में लेके आ गए ना, ptr डॉट नेक्स्ट किया हम लोगों ने, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड। हम लोगों को एक नया नोड बनाना पड़ेगा, बराबर है। और उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो है न्यू लिस्ट नोड करेंगे, हम लोग एक नया नोड बनाएंगे, करेक्ट। उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, सम, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे वो सम है। सम में क्या है, 7 है, राइट। रिमाइंडर 7 है ना, तो 7 वो हम लोग उसको रख देंगे, यू कैन सी इट। ptr डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, मतलब नया वाला जो लिस्ट हम लोगों ने वो रिजल्ट वाला जो बनाया था, उसका नोड हम लोग इधर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम सम का वैल्यू पास करवा रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पॉइंटर को नेक्स्ट नोड की तरफ इशारा करेंगे, मतलब एक नोड बन गया। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कम इन द इन दिस प्लेस, इधर आ जाएंगे हम लोग। कैरी, कैरी क्या है, 0 है, कैरी है ही नहीं। सेम प्रोसेस, L1 नल है, नहीं भाई नल नहीं है, उसमें 4 है L1 में, अभी तो नेक्स्ट पॉइंटर का दिखा रहा है। ठीक है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस L1 डॉट वैल। सम क्या है, सम ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सम प्लस L1 डॉट वैल, अभी सम का क्या रहेगा, सम के अंदर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, पॉइंटर को 3 पे लगा देगा, लिस्ट L1 के, लिंक लिस्ट थर्ड वाले, लिंक लिस्ट के थर्ड वाले नोड पे ले जाएगा। L2 नॉट इक्वल्स टू नल है, L2 नहीं है नल, उसमें भी वैल्यू है 6 है, सम के अंदर L2 डॉट वैल आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर वो पॉइंटर क्या करेगा, थर्ड वाले लिंक, सेकेंड लिंक लिस्ट के थर्ड वाले नोड पे ले जाएगा। नाउ कैरी इक्वल्स टू sum by 10, so what is the value of sum now, it's 10 right now, तो डिवाइड 10 करेंगे, 1 कैरी क्या होगा, 1 रहेगा, सम क्या होगा, 0। द सेम कंसेप्ट, सम का वो जो है वो ये कर देंगे, सम क्या है, डिवाइड, मतलब रिमाइंडर तो 0 होगा, 10 को अगर 10 से हम लोग रिमाइंड ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है, सो 0 हो जाएगा, सिंपल। Then we are gonna make it ptr equals to pointer dot next, again हम लोग पॉइंटर को क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इस पूरा इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, ये स्कोप को। फिर इफ कैरी इक्वल्स टू 1, कैरी क्या 1 है, फिर से ये एक्चुअली थर्ड का होगा, 3 प्लस 4 7 का, और कैरी एक 1 रहेगा 8, ये एकदम लास्ट में आएगा। अगर कैरी अगर 1 है क्या, यस, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट अगर होगा तो वो पॉइंट लिस्ट नोड बोल के ये जो फंक्शन है, इफ कैरी इक्वल्स टू 1, ptr डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, ये खुद एक लिस्ट, एक नोड फिर से और एक बनाएगा, और उसमें सिंपली एक वैल्यू दे देगा जिसका 1 रहेगा। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। So this is what the whole concept is. So if I will run it, what error it is giving, basically there was some extra scope, so we have cleared it, see it has accepted. So it's done. Thank you so much.